Okay, so ladies and gentlemen, yesterday we were talking about the topologies and we talked about the topologies in LAN and topologies in WAN. For example, we talked about the ring topology, we talked about the bus topology, star topology, extended star topology. Then in the WAN, we talked about the point-to-point links, for example. We talked about the mesh, partial mesh. We talked about the hub and spoke. We talked about the double homed. So these were the topologies which are being used in LAN and WAN. Then we talked about the medium access. And we said about that the medium access can be contention based, or can be controlled. Like, for example, in the token ring yesterday, we saw that it was controlled one. While in case of the WLAN, for example, or in case of the classical Ethernet, classical legacy Ethernet, it was a contention based. So we talked about, if we talk about the Ethernet, the old Ethernet, not the newer one, which we are using today, which is the switched Ethernet, where there is no contention there. So, ladies and gentlemen, here the contention method is CSMACA, collision avoidance. Well, here it is CSMACD, collision detection, because in the Ethernet we have the full duplex. So it means at the same time a device can send and can receive. So from the receiver it can check whether the data has been corrupted, been collided or not. So based upon this, the collision was, if detected, then you will look at the medium, you will sense the medium again after an exponential backoff. Any idea about the exponential backoff? No. Okay, nice. Ladies and gentlemen, again, there are two ways. One is called deterministic, and other is called probabilistic. It's telling me wrong, but not an issue. It may be probabilistic or it may be deterministic. Deterministic means already known. मिसाल के तौर पे दो नोड्स ने इस मीडियम के ऊपर डेटा भेजा, कोलिजन हो गई, अगर डिटर्मिनिस्टिक है तो भी मिसाल के तौर पे लाजमी तौर पे डिटर्मिनिस्टिक है, probably आप कहें जी after 30 seconds it will send again. After 30 seconds it will send again. So both will check the medium again, send at 30 seconds, and will find that collision will occur again. So this is deterministic. But what we do, we take random. And random or probabilistic, how it is done, that behind these probabilistic values there is some distribution. Which you might have studied in your probability course, probability for engineers or whatever the name is in your department. So you have different distributions. For example, one of them is the exponential distribution. The other one is, for example, the Poisson distribution, Pareto distribution, Weibull distribution. So there are different hundreds of distributions which are there. So here in this case, which is an exponential distribution, okay. So ladies and gentlemen, we were talking about the distributions. So whenever you have a distribution from for example, if it is the well-known Gaussian normal distribution, I hope you know about that. So it is a bell-shaped distribution. It is an exponential one. It may be continuous distributions. It may be discrete distributions. Like Poisson, जिन्होंने कहा, Poisson is a discrete one. So you can take values which will be completely random from these distributions. Are you getting my point? तो सनाउल्लाह, हमने क्यों एक्सपोनेंशियल लिया कि अगर एक नोड लेट करें, यहां से एक वैल्यू उठाती है 1.0, दूसरी उठाती है 1.25, नाउ दे आर नॉट सेम. तो अब दो नोड, जब एक ने फॉर एग्जांपल 1 के बाद आके इसको सेंस करेगा, दूसरा 1.25 के बाद सेंस करेगा, बोथ विल फाइंड दिस मीडियम एज आइडल. इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, सो दैट द रीजन दे बैक ऑफ का मतलब है कि वापस अभी रुक जाते हैं. मेरा कोलिजन हो गई है,
मुझे अब दोबारा नहीं करना चाहिए, मुझे वेट करना है। कितना वेट करना है? अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिथम। इज क्लियर नाउ? नाइस। तो हम, ये तो हो गया हमारा किस केस के लिए? CSMA CA के लिए। जो मैंने कहा कि लिगेसी यानी पुराना इथरनेट, पुराने से मुराद या तो बस पे काम करता है और या वो हब के जरिए काम करता है। तो ये कंडीशन अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो यू आर यूजिंग लेगेसी क्लासिक इथरनेट। आजकल जो आप इथरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज द स्विच्ड इथरनेट। वहां पे हर एक बंदे की अपनी केबल है, हर एक बंदे की अपनी पोर्ट और अपनी केबल है। वो किसी और के साथ कोई शेयर मीडियम नहीं है, मल्टीपल एक्सेस मीडियम नहीं है। तो वहां पे CSMA CD की कोई जरूरत नहीं है। जो भी जहां भी मल्टीपल एक्सेस होता है हाफ डुप्लेक्स ही होता है। ठीक। तो कहता है कि यूज द कोलिजन डिटेक्शन प्रोसेस टू गवर्न व्हिच व्हेन द डिवाइस कैन सेंड एंड व्हाट हैपेंस इफ मल्टीपल डिवाइसेस सेंड एट द सेम टाइम। अगर मल्टीपल डिवाइसेस एक वक्त में सेंड करते हैं तो क्या होगा? हमें पता है कोलिजन होगा, हमें पता है कि कोलिजन होगा। तो फिर हमें कोलिजन हो गए तो कोलिजन को डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट कैसे करेंगे? कि अगर हमने जो ट्रांसमिट किया है और जो हम रिसीव कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, अगर ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। एंड दैट गड़बड़ इज नथिंग बट ए कोलिजन। क्लियर एवरीवन? जी, एनी क्वेश्चन? सो डिवाइसेस ट्रांसमिटिंग साइमल्टेनियसली, अगर दो या दो से ज्यादा साइमल्टेनियसली करती हैं, will result in a signal collision on a shared medium. So device detect the collision and then device wait for a random period, and that random period is given by which distribution? Exponential distribution. Then is the collision avoidance. although यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन मैंने अपनी एक दो क्लास पहले RTS और CTS को एक्सप्लेन किया था. So this ready to send and clear to send message shows to the sender कि और कोई इस वक्त इसको, और उसमें टाइम भी होता है, तो जिससे पता चलता है कि जी अगर किसी ने RTS सुन लिया तो उसको पता है कि फॉर हाउ लॉन्ग दिस मीडियम विल बी ऑक्युपाइड, उसके बाद वो ट्राई करेगा. तो यूं कोलिजन नहीं होगी, हम उसको कोलिजन को क्या कर रहे हैं? अवॉइड कर रहे हैं. तो यही वो कह रहे हैं कि यूज इन दी IEEE 802.11 WLAN. Zaki, what is this 802.11? किस चीज का? ये WLAN का स्टैंडर्ड है. ठीक है. तो कहता है कि ऑपरेट्स, क्योंकि ये मल्टीपल एक्सेस मीडियम है तो इट ऑलवेज ऑपरेट इन दी हाफ डुप्लेक्स मोड. इस वजह से जब भी आपके यूजर्स बढ़ते हैं ऑन योर एक्सेस रूटर, दी परफॉर्मेंस डिग्रेड्स, क्योंकि हाफ डुप्लेक्स है. ठीक है. तो operates in half duplex mode when only one device send or receive at a time. Uses a collision avoidance. Collision detection possible नहीं है, क्योंकि जब sending कर रहा होगा तो receiver नहीं कर सकता, इसलिए it has to be half duplex. Use the collision avoidance process to govern when a device can send and what happens if multiple devices send at the same time. तो इस चीज से बचने के लिए multiple devices send at the same time, the method has introduced, or the protocol has introduced RTS and CTS. तो कहता है कि जी किस तरह, when transmitting devices also include a time duration. तो आप अपने RTS में बताओगे कि जी मैं रेडी हूं सेंड करने के लिए, इतना टाइम मुझे चाहिए. तो जो जो उसको सुन लेगा वो हैंड्स अप कर लेगा कि जी मुझे नहीं भेजना इतने टाइम के लिए. इसका मतलब कि ये गो, और अगर जवाब आ जाता है इसका मतलब है कि RTS किसी और के साथ, किसी और के RTS के साथ कोलिजन नहीं की उसने. इसका मतलब है कि वाकई मीडियम आपके लिए खाली छोड़ दिया गया है. तो फॉर दिस रीजन इट इज स्लोअर. तो यही वो कह रहा है कि अदर मीडियम डिवाइसेस शेयर्ड ऑन द मीडियम रिसीव द टाइम ड्यूरेशन इंफॉर्मेशन एंड नोज फॉर हाउ लॉन्ग द मीडियम विल बी अनअवेलेबल. उसके बाद यू हैव टू चेक अगेन बाय सेंडिंग इन RTS कि मेरे लिए अवेलेबल है या नहीं. क्लियर एवरीवन? नाइस. अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस मॉड्यूल, एंड दैट इज द फ्रेम. और फ्रेम आपको पता है किस लेयर पे होता है, किस लेयर पे हम फ्रेम कहते हैं? लेयर डेटा लिंक या लेयर 2. इसका मतलब है कि हम लेयर 2 का जो
हेडर है, हम उसको पढ़ना चाह रहे हैं। और अगर हम इस कोर्स में ईथरनेट का फ्रेम पढ़ेंगे, हाउएवर हम अगले कोर्स में विच इज स्विचिंग राउटिंग एंड वायरलेस एसेंशियल्स, एज द नेम रिप्रेजेंट वायरलेस विच मीन WLAN, तो वी विल बी स्टडिंग द फ्रेम रिलेटेड टू द WLAN देन। तो आज के दौर में हैं तो बहुत सी टेक्नोलॉजीज जो कि लेयर 2 पे काम करती हैं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट जो कि स्पेशली लैंड्स में मौजूद हैं, वन इज द ईथरनेट एंड अदर इज द वाईफाई। आपके घर पे हो, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे किसी के बिजनेस इन्वायरमेंट में आपने कभी जाके देखा हो, यू विल ऑलवेज फाइंड कि या तो ईथरनेट है और या नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने आपको कहा कि यहां से लेकर इस डिवाइस तक मैं वायरलेस हूं, इसके आगे आप देखेंगे कि बाहर निकले तो गौर से देखिएगा, एक वायर जा रही है, केबल जा रही है, एक यूटीपी केबल इस्तेमाल हो रही है, तो दैट इज ईथरनेट, दैट इज गोइंग टू बी टर्मिनेटेड ऑन ईथरनेट स्विच। तो यहां से हमें ये चीज समझ में आती है कि इन दोनों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजों को अगर पढ़े ना पढ़े, लेकिन कम से कम इसको पढ़ना जरूरी है, और हमारे कोर्स में भी यही है। तो जेंटलमैन, हम बात करना चाहते हैं कि फ्रेम में क्या होता है। फ्रेम में ऊपर से जो चीज आएगी वो क्या होगा, डेटा। किस लेयर से? लाजमी तौर पे लेयर 3 से, यानी नेटवर्क लेयर से। बाज केसेस में लेयर 2.5 ही इंट्रोड्यूस होती है, इस वक्त मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, यानी ना वो 2 कहलाती है ना वो 3 कहलाती है, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड 2.5। जिस तरह मिसाल के तौर पे आप लोगों ने सब लोग मोबाइल तो इस्तेमाल हर कोई कर रहा है, तो आपको पता है कि कोई कहता है जी मैं GSM इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी कि विच इज सेकंड जनरेशन। कोई कहता है मैं UMTS इस्तेमाल कर रहा हूं, UMTS। कोई कहता है मैं UMTS इस्तेमाल कर रहा हूं। है कोई इस क्लास में जो UMTS इस्तेमाल कर रहा है, जिसको आप 3G कहते हो? कुछ हैं जो 4G कहते हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको LTE कहते हैं, 4G। लेकिन कुछ इनके दरमियान में भी हैं, इसलिए मैंने जगह छोड़ दी खाली। मिसाल के तौर पे आप में से कई लोग GPRS इस्तेमाल कर रहे हैं, GPRS इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर डेटा। कुछ लोग एज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दैट कम्स समवेयर इन 2.5 और 2.75। इस तरह कुछ लोग इसके दरमियान में HSPA यूज कर रहे हैं, तो दैट इज 3.5। इट मींस नीदर दिस नॉर दिस बट इन बिटवीन। इसी तरह एक कुछ ऐसा भी है जिसमें हम लेयर, ये अगर लेयर 2 है, ये लेयर 3 है, तो इसके दरमियान में एक लेयर आ जाती है। मिसाल के तौर पे मोस्टली दैट इज यूज्ड इन दी WANs, wide area networks. You may have heard the name of MPLS. MPLS पढ़ लेंगे, MPLS. So that is 2.5. It is not 3, it is not 2. तो जब वैन्स की बात, डिटेल में वैन्स या इंटरप्राइज नेटवर्किंग की बात करेंगे, तो कई ऐसी चीजों को स्टडी करेंगे जिससे हमें, स्पेशली जब हम इंटरप्राइज में जाके काम करेंगे, और मोस्टली जॉब्स होती हैं इंटरप्राइज में ही होती हैं, यू अंडरस्टैंड। मिसाल के तौर पे कल आप इत्तलात में लग जाते हैं, PTCL में लग जाते हैं, आप नयाटेल में लग जाते हैं, आप स्ट्रॉन्ग फाइबर में आ जाते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हो, डेफिनेटली यू आर पार्ट ऑफ द इंटरप्राइज नेटवर्किंग, एंड एट दैट टाइम यू शुड नो दीज टर्म्स, इंशाल्लाह विल बी कवरिंग। ठीक। तो कहने का मकसद ये है कि ऊपर से आपको ये डेटा आया, चाहे वो लेयर 2.5 से आया, चाहे आपको लेयर 3 से आया, इससे तो आएगा ना। तो जब अलीशा ये डेटा आ जाएगा, तो इस डेटा को आपने अपना हेडर इसके साथ जोड़ना है, ये आपने हेडर जोड़ दिया, और साथ आप इसके ट्रेलर जोड़ देते हैं। ये ट्रेलर हो गया, ये हेडर हो गया, जिसमें से 14 बाइट्स का हेडर और 4 बाइट्स का
ट्रेलर। आप कहेंगे कि हेडर का क्या काम है और ट्रेलर का क्या काम है, हेडर का क्या काम है और ट्रेलर का क्या काम है। ये तो कभी भी नहीं पूछेंगे मुझसे लाजमी तौर पे कि डेटा का क्या काम है। डेटा तो वो चीज है जो कि एप्लीकेशन जिसके लिए सब कुछ बना है, जिसके लिए सब कुछ बना है। Ubaidur Rahman is asking about the LTE and UMTS, probably UMTS stands for. Gentlemen, very simple answer. However, these two technologies are related to the cellular networks. But आपने नाम पूछ, just abbreviation पूछ रहे हैं, nothing more. So very simply, UMTS stand for Universal Mobile Telecommunication System. Universal Mobile Telecommunication System, and LTE is the long-term evaluation. Even उसके बाद LTE Advanced भी आया, LTE-A. कुछ लोग इसको 3.9 कहते हैं और उसको 4 कहते हैं। कुछ लोग आप जैसे उसको कहते नहीं, ये 4.4 प्लस है, लेकिन मोस्टली LTE को 4G नहीं माना जाता। दिस इज 3.8 और 3.9। LTE-A जो है, which is long term evaluation advanced, that is called as 4G. मेरे इलेक्ट्रिकल वाले को तो स्पेशली वायरलेस का कोर्स पढ़ाया जाता है, ना बस लास्ट सेमेस्टर में। तो इनके आपसे हम नहीं पूछ सकते क्योंकि लास्ट सेमेस्टर अभी नहीं आया, ठीक है। तो आप सबके सब उससे वो है, लेकिन मेरे ख्याल से वो इन टेक्नोलॉजीज की बजाय शायद ट्रांसमिशन पे ज्यादा जोर है। किस पे जोर है? यही चीजों पे जोर है। ओके, ठीक है। तो डू यू गॉट द आंसर उबैद? क्योंकि आपका सवाल और कुछ नहीं था, सिर्फ स्टैंड फॉर था। स्टैंड फॉर मीन एब्रिविएशन यू वांट टू आस्क मी। ओके, देन मी आई कंटिन्यू। तो मैंने कहा कि जी इस डेटा के साथ आपने हेडर और ट्रेलर लगा दिया। याद रखो कि हेडर में जो सबसे इंपॉर्टेंट, इन 14 बाइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है, यस सर, ओके, थोड़ा इसको देख लिया करें। इसमें अगर कोई चैट में कोई मैसेज आता है, मैं सबको ऐसे ही जाना होता है। एनीहाउ, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हेडर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये है डेस्टिनेशन का मैक और सोर्स का मैक, जो कि हर कोई 6 बाइट्स का आपको पता है कि है। और ऑलवेज ये एड्रेस, और इसका मतलब 14 में से 12 बाइट्स तो यहां इस्तेमाल हो गए, बाकी सिर्फ 2 बाइट्स का बताना रह गया। और आपका जो ट्रेलर है इसके अंदर CRC32 है, CRC32 है, जो कि सनाउल्लाह को पता है कि किस पर्पस के लिए CRC इस्तेमाल होता है। अगेन मैं एक्सप्लेन कर दूं कि CRC स्टैंड फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो कोई बताएगा किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है CRC32? इट कैन बी CRC8, इट कैन बी CRC16, बट इन दिस टेक्नोलॉजी ईथरनेट इट इज CRC32। सारे बिट रिसीव हो गए हैं कि नहीं? जितना डेटा भेजा गया है वो सारा रिसीव हो गया कि नहीं? बस सिर्फ ये आंसर है, बाकी सारा ऐसे आपने कहा। सिर्फ आखिरी बात वाज द राइट, कि क्या जो भेजा गया है वो एरर्ड है या एरर फ्री है। तो फॉर दिस दिस CRC32 बिट इज यूज्ड। अच्छी बात इसकी ये है कि बहुत बड़े डेटा के साथ भी, जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे आपका ये लोड जो है, ये लोड डेटा दैट कैन बी अप टू 1500 बाइट्स। तो 1500 बाइट्स के साथ सिर्फ 4 बाइट्स, 32 बिट्स का मतलब 4 बाइट्स है ना, तो यानी कि इतने बाइट्स के साथ जस्ट 4 बाइट्स का एक्स्ट्रा, जिसको हम रिडंडेंट बिट्स कहते हैं, रिडंडेंट बिट्स कहते हैं। इन रिडंडेंट बिट्स से हम ये मालूम कर सकते हैं कि क्या ये जो हमें भेजा गया ये ठीक है या आफ्टर द ट्रांसमिशन ठीक है या नहीं। कुछ बात समझ आ रही? ओके, सो ऑल्दो इस कोर्स में इसकी डिटेल्स नहीं है कि किस तरह CRC काम करता है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट हुआ तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं
जस्ट इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है इसमें जो इसकी डिवीजन है वो एक कोई मुश्किल नहीं है, बट इट इज कॉल्ड मॉडुलो 2 अरिथमेटिक्स, मॉडुलो 2 अरिथमेटिक्स विच इज नॉट डिफिकल्ट। तो इस मेथड को इस्तेमाल करके मॉडुलो 2 अरिथमेटिक्स तो समझते हैं ना, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो इसमें आप नॉर्मल मेथड जो मेथड्स हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह के, उसकी बजाय यू यूज दी मॉडुलो 2 अरिथमेटिक्स। और मेरे इलेक्ट्रिकल वालों को तो ये बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि मॉडुलो 2 अरिथमेटिक कुछ भी नहीं है, माँ सिर्फ एक्सक्लूसिव ऑरिंग के, तो सबने डीएलडी पढ़ा हुआ है, तो एक्सक्लूसिव ऑर तो सबको आता है, उसका ट्रुथ टेबल बनाना इनको लिए कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। तो बाय यूजिंग दी, जस्ट मैंने आपको ग्लिम्सेस दिए इसके कि बाय यूजिंग दिस मेथड यू कैन डिटेक्ट वेदर द यू हैव व्हाटएवर यू हैव रिसीव्ड इज गुड और बैड, करप्ट और नॉट, एरर फ्री और एरर्ड। और अगर एरर्ड है तो कुछ भी नहीं करना, ड्रॉप कर दो सिंपल। अगर एरर्ड है तो आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर लेयर को देते हो तो ये गार्बेज है। मे बी वो 10 GB की फाइल हो, उस 10 GB में ये 1500 में से शो से सिर्फ एक बिट एरर में हो, 2 एरर में हो, ये उस सारे को करप्ट बना देगी। मेरी बात समझ आ रही? इसलिए यही सोल्यूशन है कि गिरा दो। तैयब कहता है गिरा दिया तो इसका मतलब वहां तो वो पार्ट खाली रह गया। तो दो बातें हैं, या तो आप इसकी ड्रॉप भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो खैर फिर ठीक है, या अगर फर्क पड़ता है तो रिट्रांसमिट हो जाएगा। आपके ज़हन में आएगा कि जी कौन सा ऐसा तरीका है जिसमें ना भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे आपके रियल टाइम कम्युनिकेशन, मिसाल तो अभी मैं अपने स्टूडेंट के साथ बात कर रहा हूं, अगर मेरे एक फ्रेम तो क्या 2-4 फ्रेम भी रेगुलरली मिस हो जाएं, might be they may look at only if some flicker in the screen or some disturbance in the audio, but still it will be recognizable. तो क्यों मैं दोबारा मांगू, और दोबारा मांगू भी तो उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक मेरा ऑडियंस वेट नहीं कर सकता, वही नहीं कर सकता कि अच्छा पैकेट गिर गए हुए हैं, करप्ट हो चुके हुए हैं, चलो मैं 30 सेकंड के बाद मुझे सुनाई देगा, उसको क्या पता। तो उसको इसका मतलब उसको जरूरत सनाउल्लाह नहीं है। जब मंसूर जरूरत नहीं है तो हम नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर ये कोई एफटीपी फाइल है, मिसाल के तौर पे आपने कोई इमेज किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का डाउनलोड कर रहे हैं, आपको एक एक बिट प्रॉपर चाहिए, देन यू विल बी आस्किंग द सोर्स टू सेंड इट अगेन। बात समझ आ गई? एंड दैट जी बिट नहीं, वो फ्रेम, वो वापस दोबारा भेज दिया जाएगा। ठीक है, ओके। तो हमने ये सीख लिया, और ये भी बताता चलूं, यहां पे एक्सप्लेन कर दूं कि आपका ये जो मैक मीडियम एक्सेस कंट्रोल का जो एड्रेस है, डी फॉर डेस्टिनेशन, पहला सवाल ये है कि पहले डी क्यों आता है, पहले सोर्स क्यों नहीं आता? इस पे भी इंजीनियर ऑलवेज थिंक जी। अगर आप अच्छे थिंक करें तो यू आर इंजीनियर, और अगर आप बस कहते हैं कि जी चलने दो तो फिर इंजीनियर नहीं है। तो पहले डेस्टिनेशन का एड्रेस आता है और फिर सोर्स का। क्यों? कि जब पैकेट रिसीव होगा तो पहले आपको डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस नजर आना चाहिए। अगर डेस्टिनेशन का एड्रेस आपको नजर आ गया तो आपने देखना, उसको आपने पढ़ लिया, तो वहीं पे आपको पता है कि अब क्वेश्चन ये आता है कि ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि हमें पहले क्यों हम डेस्टिनेशन को लेते हैं। ठीक, ये भी बताता चलूं कि ये 48 बिट्स जो कि हेक्साडेसिमल में लिखे जाते हैं, किसमें लिखे जाते हैं? हेक्साडेसिमल में। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे कमांड प्रॉम्प्ट पे चला जाऊं और यहां पे मैं आईपी कॉन्फ़िग कर, जी, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि मेरा मैक एड्रेस ऑफ द ब्लूटूथ डिवाइस क्या है, ये EA2A44
E8B052। इसी तरह मेरे वाईफाई का क्या है, E82844E8B051। इसमें थोड़ा सा तवज्जो दो, तो मुझे कुछ आप बता सकते हो जो कि मुझे हेल्प आउट करेगा फर्दर टीच करने में। लिख लो अपने पास मेरा मैक एड्रेस। मेरे वाईफाई का एड्रेस है, मैक एड्रेस E8-2A-44-E8-B0-51। नोट कर लिया, ये मेरे वायरलेस का है। अब देखिए मेरे ब्लूटूथ कार्ड का क्या एड्रेस है, वो ये है E8-2A-44-E8-B0-52। लिख लिया अपने पास? जिन्होंने लिख लिया कुछ कमेंट कर सकते हो इस पे, इन दो एड्रेसेस पे? क्या कमेंट करोगे? लास्ट कितने डिजिट चेंज है? एक, ये 52 है। अच्छा ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये, क्योंकि ये दोनों कार्ड एक ही कंपनी के बने हुए हैं, तो इसमें जो पहले 24 बिट्स हैं, ये हर कोई 8 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले 3 बाइट्स दे आर स्पेसिफिक टू दी क्यू के। क्यों इसकी जरूरत है? वजह यह है कि दिस एड्रेस मस्ट बी यूनिक। मिसाल के तौर पे अगर मेरे इस लैन में, क्योंकि लैन में इसकी इंपॉर्टेंस है, अगर मेरा मैक एड्रेस और मंसूर का मैक एड्रेस एक हो जाए तो क्या होगा? स्विच के पास जब जाएगा तो उसको कहा जाएगा जी मैक एड्रेस, मिसाल के तौर पे एक्स मैक एड्रेस को दो। ठीक है, मैं तो क्या करूं, यहां तो 2 मैक एड्रेस है, एक्स है, किसको दूं? इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट दिस मैक एड्रेस मस्ट बी यूनिक। अब क्वेश्चन ये है कि पूरी दुनिया में मल्टीपल डिवाइस वो हैं, वेंडर्स हैं जो कि मैक ये बनाते हैं, एनआईसी कार्ड्स बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप यहां पे देखें तो ये वाला मेरा जो कार्ड है वो क्वालकॉम का बना हुआ है, जबकि अगर मैं ऊपर जाके अपना ईथरनेट कार्ड दिखाऊं तो वो रियल टेक का बना हुआ है। अभी देख लेते हैं, वो ईथरनेट को मैंने क्या वो किया हुआ है, प्रोबेबली मैंने शायद उसको डिसेबल किया हुआ है। अगर वो डिसेबल्ड है, प्रोबेबली यस, अभी हम उसको ऑन कर देते हैं ताकि आपको नजर आ जाए। ये जी मेरा इथरनेट कार्ड, और नॉट कनेक्टेड तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 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 असल इंपॉर्टेंस मेरे लिए है कि मैं ये चेक करूं। सॉरी, 1 मिनट दीजिएगा और फिर मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। आई गो टू देयर, I want to check the, for example, if I choose this and I go to the network change adapter options, and here G, and I look at the Ethernet card here and disable this card, it is available. चलिए disable करके दोबारा होगा वहां पे, फिर लाजमी बात है। Disable this card and enable this card, and again we look at this ipconfig/all और चेक करते हैं कि हमारा इसका एड्रेस जो है, ये तो हमें क्लियर हो गया कि ये क्वालकॉम का है, E8-2A44, और ये पार्ट जो है ये इस कंपनी की मर्जी, जो मर्जी दे। तो अभी हम इस पे एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता था कि ये हमें VMware की तरफ से मिला, तो ये कहते हैं VMware वालों का ये है 005056। इसी तरह देखें यहाँ भी VMware वालों की तरफ है, तो सेम सिमिलरली ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ है, तो FA2A44। तो आप देख रहे हैं कि हर कंपनी के, देखिए और उसका है, तो ये भी वही है, माइक्रोसॉफ्ट का है, तो यही आ रहा है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि हर एक का फर्स्ट 20, ये बिल्कुल जी रियल टेक का है। मैंने कहा था मेरा इथरनेट कार्ड जो है वो रियल टेक का है,
और रियल टेक का आपको पहले 24 बिट ये मिले हुए हैं 8C 1645। किससे लड़ना नहीं कि जी सर ने तो कहा था कि रियल टेक वालों का मिसाल के तौर पे 8C 16 और 45 है, क्योंकि इसका मतलब तो हुआ कि सिर्फ रियल टेक 2 पावर 24 कार्ड बना सकेगा। अगर उसने बना लिए तो क्या करे, अपनी इंडस्ट्री बंद कर दे, क्या करे फिर, एक और ये 24 बिट्स ले लेगा। तो इस तरह हम सिस्को के मिसाल के तौर पे देखते हैं तो आपके पास मल्टीपल सीरीज आती हैं, क्योंकि पहली उसने इस्तेमाल की, खत्म हो गई, दूसरी ली, तीसरी ली, चौथी ली, पांचवी ली, क्योंकि 2 पावर 24 सीरीज पॉसिबल है। बात समझ आ गई? तो क्योंकि आपने पहले 24 बिट यूनिक ले लिए, अब उसके साथ आप कुछ भी लगा लें, दैट विल बी यूनिक। तो यूं दिस एड्रेस इज ऑलवेज यूनिक, दिस एड्रेस इज ऑलवेज यूनिक। तो ये भी यूनिक हो गया, ये भी यूनिक हो गया, समझ आ गई, और ये भी समझ आ गया कि ये CRC करता क्या है। तो अब हम इसको फिर यहां से देख लेते हैं, पहले इसको लास्ट लाइन कुछ देख लेते हैं। कहता है जी द फील्ड ऑफ द हेडर एंड ट्रेलर आर वेरी अकॉर्डिंग टू डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। यस, यहाँ पे हमारा, हम किस डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल को पढ़ रहे हैं इस वक्त? ईथरनेट। हम किस डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल को पढ़ रहे हैं इस वक्त? ईथरनेट। मैंने कहा कि हम अगले कोर्स में WLAN को पढ़ेंगे। सो इसलिए लुकिंग एट दिस डेटा लिंक लेयर, दिस हेडर फील्ड्स विल वेरी। तो कहता है द अमाउंट ऑफ कंट्रोल इंफॉर्मेशन कैरिड विद इन द फ्रेम वेरीज अकॉर्डिंग टू द एक्सेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन एंड लॉजिकल टोपोलॉजी। तो इट वेरीज। अब यहाँ पे आके आपको इसको एक एक चीज को दिखाता है कि जी दरमियान में आपका 1500 बाइट्स का डेटा है, आखिर में आपके 4 बाइट्स का 32 बिट्स का CRC है। फिर मैंने बताया कि एड्रेस है, एड्रेस में पहले डेस्टिनेशन के 6 बाइट्स और फिर सोर्स के 6 बाइट्स, तो 12 बाइट्स ही हो गई। 2 बाइट सिर्फ रह गए, टाइप और कंट्रोल। टाइप और कंट्रोल। टाइप ये बताने के लिए है, क्योंकि अब अगर ये मिसाल के तौर पे लेयर 3 को देता है, तो लेयर 3 में तो अभी हमने देखा कि IP वर्जन 4 भी हो सकता है, IP वर्जन 6 भी हो सकता है, ICMP भी हो सकता है, और अभी मैंने आपको वो बता दी कि MPLS भी हो सकता है। तो अगर इसको पता नहीं है तो किसको देगा ऊपर? बात समझ आ रही है ना? अगर लेयर 2 को ये नहीं पता, क्योंकि इसको तो फिजिकल लेयर में दिया, इसको क्या पता कि IPv4 का है, क्योंकि ये उनके हेडर जाके नहीं पढ़ सकता ना, इसके पास टाइम है। तो यहां टाइप में ये बता दिया जाएगा, टाइप में ये बता दिया जाएगा कि आइडेंटिफाइज एनकैप्सुलेटेड लेयर 3 प्रोटोकॉल। समझ आ गई? इज इट क्लियर? नो? ओके। देखें मिसाल के तौर पे ये लेयर 3 है, इसमें 2 चीजें हैं, ये लेयर 2 है, ये लेयर 2 है। अब इसके पास फ्रेम एक आ गया है, इसको क्या पता कि मैं इस पेन को दूं कि मोबाइल को दूं? नहीं पता ना। तो हमने इस 6-8 बाइट जो एक बाइट है, इसमें ये बताएंगे कि पेन को दे दो, या मोबाइल को दे दो, या किसी और को दे दो, IP वर्जन 4 को दे दो, IP वर्जन 6 को दे दो, ICMP को दे दो। बात समझ आ गई? ओके, सो वी आर बैक। ओके, अब इसमें बताया जा रहा है फ्रेम स्टार्ट एंड फ्रेम एंड। 2 चीजें बताई जा रही हैं, फ्रेम स्टार्ट और फ्रेम एंड। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ दी हेडर, हेडर इज दिस वन। द फ्रेम स्टार्ट सिर्फ ये बताने के लिए है कि आपका जो दूसरा एंड है उसको पता चले कि जी एक फ्रेम आ रहा है, ताकि बी रेडी टू गेट इट, बी रेडी टू एक्सेप्ट इट। और जब खत्म हो रहा हो तो आप बताएं फ्रेम एंड, ताकि पता चल जाए कि फ्रेम यहां पे आपका खत्म हो चुका हुआ है। तो दैट द रीजन वी हैव स्टार्ट, इसको डिलिमिटर्स भी कहते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? तो इसके बाद हम आते हैं अबाउट द लेयर 2 एड्रेसेस। तो मैंने जैसे पहले बताया कि लेयर 2 एड्रेसिंग में आल्सो, इसको आप फिजिकल एड्रेस भी कह सकते हैं,
इसको आप बर्न्ट इन एड्रेस भी कह सकते हैं। आप इसको क्यों बर्न्ट इन एड्रेस कहते हैं? क्योंकि ये फिजिकली बर्न्ट होता है आपके एनआईसी कार्ड के ऊपर। आपका जो मिसाल के तौर पे आईपी एड्रेस है वो बर्न नहीं है, वो आप तब्दील होता रहता है, ये फिक्स है। तो इसको आप लेयर 2 एड्रेस भी कह सकते हैं, फिजिकल एड्रेस भी कह सकते हैं, बर्न्ट इन एड्रेस भी कह सकते हैं। इसमें क्या चीज होती है इंपॉर्टेंट? फ्रेम का हेडर ओनली फॉर लोकल डिलीवरी, यानी इसका इस एड्रेस का वैन में कोई काम नहीं है, इसका काम सिर्फ लोकल डिलीवरी में है, यानी लैन में है। फॉर द फ्रेम ऑन द लिंक अपडेटेड, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपडेट होता रहता है, तब्दील होता रहता है हर एक हॉप के ऊपर। क्यों? मिसाल के तौर पे अगर मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूं तो आपको नजर आ रहा है अब कि ये आपका सोर्स है और ये आपका डेस्टिनेशन है। आपके सोर्स का आईपी एड्रेस ये है 1.110 और आपके डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस जो है वो 172.16.1.99 है। ओके, नो प्रॉब्लम। ये एड्रेसेस नहीं तब्दील होंगे। सोर्स में हम सोर्स का आईपी डाल देंगे, डेस्टिनेशन में हम इसका ईएल एड्रेस डाल देंगे। लेकिन आप गौर थोड़ा सा अगर करो तो इस L3 के साथ जो कलर इस्तेमाल हुआ है, इज इट चेंजिंग? दैट इज फॉर दिस रीजन कि ये एड्रेस तब्दील नहीं हो रहा। आपने यहाँ पे सोर्स का आईपी लिख दिया, डेस्टिनेशन का आईपी लिख दिया, इट विल रिमेन सेम एक्सेप्ट वन रीजन जो कि बता देता हूं। अदरवाइज इसको चेंज होने की कोई जरूरत हरगिज नहीं। वाइल अगर आप इसको देखो तो यहां पे ये कलर डिफरेंट है, ये कलर डिफरेंट है, ये कलर डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पे सोर्स, डेस्टिनेशन और सोर्स के जो एड्रेसेस हैं हर जगह बदलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे सोर्स ये है, यहां पे सोर्स 1 है, डेस्टिनेशन राउटर की ये इंटरफेस है जिसको मैं 2 कह लेता हूं। यहां पे डेस्टिनेशन 2 है, सोर्स 1 है, मैक एड्रेस लिख रहा हूं, M2 कह लेता हूं ताकि चले आपको क्लियर रहे। M2 का मतलब है मैक एड्रेस 2, मैक एड्रेस 1। जब यहां से यहां जाएगा, R2 से R3, R1 से R2 जाएगा, अब आपका सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये है, यानी आपका सोर्स 3 है, M3 है और आपकी डेस्टिनेशन M4 है। तो यहां पे इस L2 में जो डेस्टिनेशन लिखी जाएगी दैट विल बी M4 और सोर्स लिखा जाएगा M3। जब ये यहां पे आएगा तो सोर्स ये हो जाएगा, डेस्टिनेशन ये हो जाएगी। यहां पे मिसाल के तौर पे यू मे कॉल इट M5 एंड M6, तो अगेन इट विल बी चेंज्ड हियर। तो दिस एड्रेस चेंजेस, दिस पार्ट ऑफ द फ्रेम चेंजेस एट एवरी हॉप, जबकि जो L3 का हेडर है, कुछ गलत अगर मैं कहूं तो हम कह सकता हूं कि तब्दील नहीं होता, लेकिन ये भी तब्दील होता है। लेकिन 2 हालतों में इसकी तब्दीली, आपने सुना होगा एक लफ्ज नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये टॉपिक में जब 8 चैप्टर में, अब हम 6 चैप्टर पे हैं, ये 6 चैप्टर पे आज खत्म कर रहे हैं। जब हम 7 के बाद 8 पे जाएंगे, आईपीस को सीखेंगे, तो फिर हमें इसकी समझ आ जाएगी। लेकिन अभी आपको ये बताता चलूं कि हमें एक खास आईपी चाहिए इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए, वो हमारे पास नहीं है। मिसाल के तौर पे अभी आपने देखा कि मेरा आईपी जो है इस पे वाईफाई पे कोई 10 डॉट की सम सीरीज में होगा, देख लेते हैं जी। ये देख लें 10.137.12.57। इस आईपी के साथ मैं गूगल के पास नहीं जा सकता, इस एड्रेस के साथ मैं जूम के पास नहीं जा सकता, लेकिन गया तो वो हूं। आपकी बात दुरुस्त है, जो कुछ आप दिल में सोचते हैं वो यही है कि गए तो वो हो, जूम के साथ आप 7 लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं। लेकिन अगर मैं यहां पे ये दिखाऊं, मैं ब्राउजर पे जाके यहां पे लिखूं माई आईपी एड्रेस,
माय आईपी एड्रेस, इंटर करता हूं। देखिए मेरा आईपी, इसमें किस आईपी से दुनिया के साथ, जूम के साथ इस वक्त बात कर रहा हूं। इसको नेट भी बेकार है। अगर आप में से कोई कर सकता है कि कर लिया, तो क्या है आपका आईपी? जकी कह रहा है कि मुझे भी यही एड्रेस मिला हुआ है, मैं भी इसी एड्रेस से लोगों से बात कर रहा हूं, और एहसान आप भी कर रहे हो। ये नेटिंग है कि पीछे हमारा एड्रेस डिफरेंट है। मेरा को 10 डॉट समथिंग में था, आपका कोई 192 के समथिंग में है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो पूरी दुनिया को लगता है कि हम इस एड्रेस से सब के सब हम आए हुए हैं। जी जेंटलमैन, क्योंकि क्योंकि ये पब्लिक, साथ के नीचे लिखा हुआ पब्लिक आईपी। ओके, तो जेंटलमैन क्वेश्चन आपका है कि दोनों का एक क्यों है? क्योंकि ये है पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी हमारे पास लिमिटेड है। मे बी आपकी पूरी यूनिवर्सिटी को 10 आईपीज मिले हों, लेकिन यूजर्स तो यहाँ पे, मुझे लास्ट टाइम चंद दिन पहले जरूरत थी तो मैंने मालूम किया कि हम हर साल इनटेक क्या करते हैं, तो पता चला कि शायद हमको 2200 स्टूडेंट्स हर साल इनटेक करते हैं तमाम यूटी में। तो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो इट इज अराउंड 9000। तो 9000 स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी है, स्टाफ है, और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर बंदे ने अपनी जेब में एक लैपटॉप के साथ साथ 2 मोबाइलें भी रखी हुई हैं। 2 नहीं है तो एक तो है ही है मेरी इस क्लास में कोई जिसकी जेब में 2 मोबाइलें हैं, हर रोज 2 मोबाइलें लेकर आता है या आती है? नो, सबके पास एक ही है। लेकिन कई ऐसे मैंने लोग देखे हैं जिनके पास 2 हैं। तो इसका मतलब जी, उसका बटन वाला होता है। चलें, कहने का मकसद ये हुआ जेंटलमैन कि उसके पास उसको 3 आईपीस चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर मैं कहता हूं 10,000 तो माइट बी 25, मे बी समवेयर फ्रॉम 20 to 30,000 आईपीस मुझे चाहिए। नेवर पॉसिबल टू गेट ऑल ऑफ देम। तो हम अंदर एक खास आईपी स्कीम चलाते हैं। जैसे अभी जकी ने कहा मेरा को 192.168 में है, मैंने कहा मेरा को 10 डॉट समथिंग में है। हम इस किस्म के आईपी चलाते हैं। बाहर दुनिया को हम बताते हैं कि एक यूनिक आईपी है और वो हमारे यूटी के लिए है। तो हम इस आईपी को इस आईपी में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो जो करता है उसको नेट कहते हैं। क्योंकि अगर आपका एड्रेस, मिसाल इसकी वजह यह है, अलीशा ने पूछा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। द सिंपल आंसर इज कि अगर हम ये जो एड्रेस इसका है या जो एड्रेस मेरा है, ये एड्रेसेस इसी यूनिवर्सिटी में बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ना सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में बल्कि आपके घर में भी इस्तेमाल हो रहा है। न सिर्फ आपके घर में बल्कि एग्रीकल्चर में, शाह यूनिवर्सिटी में और सब जगहों पे भी ये इस्तेमाल हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर चले मैं एज्यूम करूं कि यही आईपी रेंज हम यहाँ पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं डीसीएससी में, और आप लोग इलेक्ट्रिक में भी कर रहे हो। अब अगर बाहर से कोई पैकेट आए, कोई मैसेज आए, तो राउटर तो पागल हो जाएगा कि इलेक्ट्रिकल भेजूं कि मैकेनिकल भेजूं कि डीसीएससी भेजूं कि माइनिंग भेजूं। तो इस वजह से हम पूरी दुनिया को के साथ जब बात करते हैं तो यूनिक एड्रेस से करते हैं, जो कि ये है हमारे यूटी के लिए। इसी तरह आज आप घर पे जाके देखें, खुद भी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए और अपने बहन भाइयों को तुम भी कनेक्ट हो जाओ, सबको देखोगे तो आपका इंटरनल आईपी जो होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन जिससे आप दुनिया की तरफ जा रहे हो, अब माई आईपी एड्रेस करके देखना, सबका एक होगा। तो वहां भी नेट हो रहा है। सर्टेन रेंज के अंदर होता है पब्लिक आईपी? जी, सर्टेन रेंज के अंदर होता है ये जो पब्लिक आईपी? जी बिल्कुल।
आईपी एड्रेसेस जो हैं आईपी वर्जन 4 के 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, प्राइवेट, पब्लिक और रिजर्व्ड। तो बाहर जाने के लिए जो एड्रेस चाहिए दैट इज ओनली एंड ओनली पब्लिक। मेक सेंस? डिटेल्स चैप्टर, जब मैंने कहा कि चैप्टर 8 पे इंशाल्लाह जाएंगे तो खूब डिटेल्स में उस पर बात करेंगे, नो इशू। ओके, तो अब समझ आ गई कि हर एक उसके ऊपर हमारा ये आईपी तब्दील होता, हमारा ये पैकेट तब्दील हो रहा है। तो कहता है कि जी कॉन्टेन्ड दी फ्रेम हेडर used only for local delivery, updated on each device, updated on each device, you can see. Then comes कि आपके पास लैन एंड वैन फ्रेम्स। लाजमी तौर पे कुछ आपके ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो लैन में इस्तेमाल होती हैं, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो कि वैन में इस्तेमाल होती हैं। उसके मुताबिक आपका फ्रेम लगेगा। मिसाल के तौर पे इथरनेट किसके लिए है? लैन के लिए। इथरनेट किसके लिए? लैन के लिए। वाईफाई किसके लिए? लैन के लिए। पॉइंट टू पॉइंट वैन के लिए। आपका एक एंड यूईटी है, आपका दूसरा एंड जो है नया टेल है, इसके दरमियान में एक पॉइंट टू पॉइंट लिंक है। नाउ दिस इज ए वैन लिंक। तो उसका वैन पीपीपी का उसमें हेडर लगेगा। इस तरह इट माइट बी एन एटीएम, अगेन वैन लिंक। आप सबको पता है कि एटीएम क्या है? यस सर, नो? जी, एटीएम तो सबको पता है, पैसों वाली चीज है ना? तो वो बार बार कह रही है कि नहीं, एटीएम प्रोटोकॉल है, टेक्नोलॉजी है, asynchronous transfer mode. ATM is not the auto teller machine. ATM is the, in our case ATM is the, और एक वक्त में बहुत हार्ड, बहुत हॉट टेक्नोलॉजी थी एटीएम। तो उसमें आपके, उसको सेल स्विचिंग भी कहते हैं, कि उसमें आप एक फिक्स साइज के सेल्स बनाते थे और उनको भेजते थे टुवर्ड्स दी अदर एंड। और वो हर सेल आज भी 53 बाइट्स का है, फिक्स, जिसमें 48 बाइट्स जो हैं वो डेटा के होते थे और 5 बाइट जो होते थे कंट्रोल के होते थे या होते हैं। गॉट इट? इज इट फाइन? तैयब, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी टेक्नोलॉजी है, लैन की है या वैन की है, उसके मुताबिक हेडर लगेगा। ये नहीं कि हमेशा यही हेडर जो मैंने पढ़ा दिया यही लगेगा। इज इट फाइन? तो इसी तरह फ्रेम रिले, फ्रेम रिले भी एक उससे भी पुरानी टेक्नोलॉजी है, शायद ही कहीं कहीं पे अभी भी इस्तेमाल हो रही हो फ्रेम रिले। तो इसके अपना हेडर का फॉर्मेट है, इसका अपना लेयर 2 का फॉर्मेट है हेडर का। तो कहते हैं ईच प्रोटोकॉल परफॉर्म्स मीडियम एक्सेस कंट्रोल फॉर स्पेसिफाइड लॉजिकल टोपोलॉजीज। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर, वी फिनिश दिस चैप्टर। और इंशाल्लाह ताला आज हम आगे नहीं जाते, जा भी सकते हैं, हमारे पास अभी तकरीबन एटलीस्ट 15 मिनट हैं। तो हमारा अगला जो चैप्टर होगा डेट विल बी, लेकिन चले हम अगर इसको चैप्टर पे नए पे जाने की बजाय जस्ट एक वो ले लें कि जी हमने इस चैप्टर में क्या कुछ सीखा। तो चले जब एक एक पॉइंट पे हम बात करेंगे, गुजारेंगे इसको, तो आप लोगों ने अगर कोई चीज रह गई हो तो आप पूछ लेंगे, विच इज नाइस। व्हाट डिड आई लर्न? पहली चीज हमने लर्न की कि द डेटा लिंक लेयर ऑफ द OSI मॉडल प्रिपेयर्स नेटवर्क डेटा फॉर द फिजिकल। यानी एक तरफ आपका नेटवर्क लेयर है, दूसरी तरफ आपके पास फिजिकल लेयर है, और ये इसके दरमियान में यहां बैठा हुआ है। पहली बात इसकी है कि प्रिपेयर करता है यहां से जो डेटा आता है इसके लिए। फिर क्या कहता है? डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। लाजमी तौर पे ये एल्गो किस पे इंप्लीमेंट होता है? NIC कार्ड पे। फिर हमने कहा कि इसके लिए 802
data link layer this is the IEEE 802 LAN MAN data link layer consists of the following two layers. मैंने बताया कि यहाँ के दो, एक LLC और एक MAC है. फिर मैंने बताया कि दो किस्म की टोपोलॉजी होती है, फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी. फिर बताया कि अगर आपकी WAN टोपोलॉजीज हैं तो इट कैन बी पॉइंट टू पॉइंट, it can be a mesh, it can be a partial mesh, it may be a hub and spoke, it may be dual homed. फिर हमने कहा कि हमारा कम्युनिकेशन हाफ डुप्लेक्स भी हो सकता है और फुल डुप्लेक्स भी हो सकता है. हमने कहा कि जहां भी कंटेंशन होगी, मल्टीपल एक्सेस नेटवर्क होगा, वहां पे ऑलवेज हाफ डुप्लेक्स होगा. और अगर हमारा मल्टीपल एक्सेस है तो फिर हम इधर CSMA-CA या CSMA-CD इस्तेमाल कर रहे होंगे. फिर हमने कहा कि हमारे फ्रेम के डेटा लिंक का फ्रेम जो है उसमें तीन चीजें होंगी, हेडर, ट्रेलर और डेटा. फिर हमने कहा कि इसके आगे और पीछे स्टार्ट और स्टॉप के एक एक फ्लैग्स होंगे, डिलिमिटर्स होंगे. फिर हमने कहा कि डेटा लिंक लेयर एड्रेसेस आर आल्सो नोन एज फिजिकल एड्रेसेस और बर्ट इन एड्रेसेस. हमने कहा कि डेटा लिंक एड्रेसेस आर नॉट ओनली यूज्ड एट द लिंक लोकल डिलीवरी. वैन में इसका कोई कॉन्सेप्ट, कोई जगह नहीं है. फिर हमने पढ़ा कि जो टर्म्स हमने इसमें पढ़ी, हमने LLC की नई टर्म सीखी, यहाँ पे हमने मैक की नई टर्म सीखी. यहाँ पे हमने कहा कि जी जो बॉडीज इन चीजों को स्टैंडर्डाइज करती हैं उनमें IEEE है, ITU है, ISO है, NC है. हमने फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, CSMA-CD, CSMA-CA, CRC और कंटेंशन बेस्ड और कंट्रोल बेस्ड. कंटेंशन बेस्ड की हमने दो एग्जांपल ली. वन वाज द ईथरनेट एंड द अदर वन इज द WLAN. जबकि हमने कंट्रोल बेस्ड की जो एग्जांपल ली दैट वाज द टोकन रिंग. कोई चीज हमने छोड़ी? हरगिज नहीं, which is nice. So with this chapter is over. Is there any question? 13 अभी देख लेते हैं जी. अगला वीक आपका एग्जाम का वीक जो है वो तो 23 वाला है. आप इन दिनों में पढ़ लें, वो मत करें. एक दिन या 2 दिन कर लेंगे और बाकी आपको छोड़ देंगे, क्योंकि फिर मसला ये आएगा कि अगर ये वीक भी हम छुट्टी कर देंगे, फिर लाजमी तौर पे इस वीक में तो आप सोचेंगे भी नहीं कि हम आए. फिर अगले वीक में आप एक बार फिर सोचेंगे जी हमारे वो चल रहे हैं, लैब चल रही हैं. तो 3 वीक्स का मतलब है रफली अ मंथ. मुझे कोई नुकसान नहीं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर ये कर लो तो मुझे नहीं, लेकिन फिर आप लोगों को एक जेन्युइन वो होता है कि कोर्स बड़ा लंबा हो गया है. जैसे कल मेरे पास एक स्टूडेंट आया था कि जी हमने एक लोकल यहाँ से किया, तो हमें तो ये भी नहीं पता कि 3 कोर्सेज हैं. बस उन कोर्सेज में जो उन्होंने पढ़ा दिया, उन्होंने कहा ये CCNA है, और ना कोई एग्जाम होता था ना कुछ होता था. तो उस तरह का पढ़ाना में देखे ना, अभी आपको उनकी स्लाइड से मैंने एक एक पॉइंट रीड किया तो आपने सारे पॉइंट्स कवर किए हुए थे. हमारा मकसद यही है कि मार्केट में जाओ तो कुछ आपके पल्ले पड़ा हुआ हो, तो बड़ा लंबा छुट्टी हो जाएगा. अगर हम तो अगले वीक में छुट्टी ना करें, उसके नेक्स्ट वीक 2 वीक्स तो डेफिनेटली कोई चॉइस नहीं है हमारे पास. चलें इस पे हम काम कर सकते हैं कि 4 बजे क्लास ना खत्म करें. ठीक है, 2 दिन आना पड़ेगा ना. तो 2 दिन से जो लोग हॉस्टलाइट हैं वो तो घर पे अपने बैठ सकते हैं, मतलब अपने हॉस्टल में आना इतना मुश्किल नहीं होता. लेकिन जो लोग घरों से आते हैं उनके लिए यस आई कैन थिंक अबाउट के उनके लिए मुश्किल होगा कि घंटा डेढ़ वो सिर्फ आने जाने में लगाएं, तो उस दिन थोड़ी लंबी क्लास लेके और आगे छुट्टी कर लेंगे. इज इट फाइन? तो चलें, तो वी स्टॉप हियर लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड वी विल इंशाल्लाह मीट ऑन कमिंग वेडनेसडे. और हम आपको वेडनेसडे पे इसलिए भी देखना चाहते हैं कि ट्यूसडे को एक सेमिनार है, वो आप लोग अटेंड करें. दैट इज अबाउट द AI. मिला आपको कोई एडवर्टीजमेंट? क्या करना है? पोस्टिंग आप कर रही हैं, तो हमें आपने फिर मुझे आपने थोड़ा सा उसके